Yes, a very good evening to everyone. We welcome you in this beautiful demo session on the Ayurvedic hair care. Even now, as we speak, if you all want that your friends, relatives, someone is in need of this session, you can still forward the link of this session to them. Okay? Because even though this is a free call, we have lot many takeaways. We have too much to learn about our hair health, which is one of the most important aspects of our life because it gives us confidence. Yes, and healthy hair represents many other things about our health. So I will invite the expert in this field, Dr. Meghavi Shah. Many of you already know her. We've done many courses with her, and she has this art of explaining in very simple language, and she gives very effective, simple things which we all can practice and actually get results. So I invite you on the platform. Dr. Meghaviji, request you to unmute yourself. Yes. So Yeah. we will, Thank you so much, Pooja, for creating this space. Yeah. yes. So we will let her teach for 1 hour at least, and then towards the end, we will do the question and answers. And once again, want to welcome all of you beautiful, lovely people who want to become the best version of themselves. Over to you, Meghaviji. You can begin. Yeah. Yes. Thank you so much, Pooja, for creating this space. And thank you so much, everyone, for being here and acknowledging your hair health and ready to take care of that health. Yeah. Thank you so much, Pooja, for We will be providing this. explaining in both the languages. Don't worry, Hindi and English, Yeah. both. She says everything in both the languages. Yes. Yes. Thank you Yes. so much, ma'am. Let's begin. So, yeah. Thank you. So, it is like all about revive and restore. Ayurvedic hair care made simple this process and with obviously with Dr. Meghavi. So let's we move further. So first of all, this is the main aspect which we all have to address. ये चीज जो है वो हम सभी को बहुत deeply समझनी चाहिए. Your hair is not just about your beauty and confidence. It is a mirror of your body, mind, and emotions. When you care for your inner health, your hair naturally shines. So it is like हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि हम हेयर प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, हेयर पे या स्कैल्प पे कुछ चीजें कुछ प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करेंगे तो हमारी हेयर की हेल्थ में बेनिफिट मिलेगा, बट और हमारी ब्यूटी और कॉन्फिडेंस में वो बदलाव मिलेगा. बट इट्स नॉट अबाउट दैट. आपकी हेयर, आपके जो भी इश्यूज है हेयर से जुड़े हुए, वो आपका मिरर है. आपकी बॉडी, माइंड एंड इमोशंस क्या इम्बैलेंस है आपकी रियलिटी में. सो हेयर हेल्थ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वेलनेस. नरिश इनसाइड एंड ब्यूटी फ्लो आउटसाइड. तो जितना हम इनर एसेंस को एक्नॉलेज करेंगे हमारी बॉडी में या हमारे इमोशंस में या हमारे मेंटल हेल्थ में क्या इश्यूज है, उन्हें हम एड्रेस करेंगे और उन पे हम एक्चुअल वर्कआउट करेंगे, तब हमें एक्चुअल हमारी हेयर हेल्थ पे वो रिजल्ट दिखेंगे जो परमानेंट है और लॉन्ग लास्टिंग है, और अगेन वो हमारी साथ में ब्यूटी और कॉन्फिडेंस दोनों को एनहेंस करेगा. सो लेट्स फर्स्ट वी टॉक अबाउट लिटिल बिट हेयर. So hair facts all about the composition. We all know about the hair is made of keratin, a type of protein that also strengthens nails and skin. तो हम सभी को पता है कि केराटिन प्रोटीन है जिससे हमारी हेयर बनी हुई है और जिससे हमारे नेल्स एंड स्किन भी बने हुए हैं. नंबर्स ऑफ हेयर फॉलिकल्स, 2 minutes जस्ट. Dr. Meghavi? हाँ, sorry, एक phone continuously, so I'm just Yeah. addressing them. So sorry for that. Because he is continuously calling, so it is disturbing my space also. Yeah, thank you so much for being here. Yeah, so again, number of hair follicle is all about, on an average, a person has a 1 lakh to 1.5 lakh hair follicles on their scalp. It is all about the follicles, and then according follicles health हमारे हेयर उस हिसाब से होते हैं. तो
बेसिक हमारी ग्रोथ साइकिल क्या है? व्हाट इज अवर हेयर ग्रोथ साइकिल? नॉर्मल. सो इफ we didn't have any physical, mental, emotional issue, then our normal hair growth cycle is all about, first is anagen phase जो 3 to 5 years तक रहता है. इसीलिए आप नॉर्मली देखोगे, if the kid has didn't have any health issue, अलग हो जाता है. सॉरी. या, इट्स ओके. जैसे ही फॉलिकल्स में से कैसे, सॉरी, आइस प्लेट में से कैसे थोड़ा पिघल के आइस अलग हो जाता है, या चॉकलेट की मोल्ड से जब आप चॉकलेट निकालते हो कैसे वो सरफेस से अलग होके बाहर हो जाता है, वैसे ही ड्यूरिंग कैटेजन फेज ग्रोथ स्टॉप्स एंड स्लोली एंड जेंटली द हेयर रूट इज डिटैच फ्रॉम दी फॉलिकल्स का जो गैप है वहां से. देन इट्स कम टू द टेलोजेंस फेज. दिस प्रोसेस डन इन नियर बाय 10 days में हो जाती है कैटेजन फेज. देन 3 months की स्पेस में वो कंप्लीटली फॉलिकल से रूट अलग हो जाता है, और वो जो फॉलिकल से रूट उसका कनेक्टेड है अपने ब्लड वेसल्स वगैरह से, वहां से भी वो डिटैच हो जाता है, एंड हेयर नेचुरली शेड्स टू मेक रूम फॉर अ न्यू ग्रोथ. तो वो नए जो जो नया रूम था, वहां पे जो रूम था वहां से निकल गया, तो उसके बाद जो रूम रहा वो नए बीज बनाना स्टार्ट करेगा. एंड देन एक्सोजन फेज, शेडिंग फेज, यानी वो हेयर निकल जाएगा और नया सीड ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज द नॉर्मल साइकिल. अभी ये ड्यूरिंग एंटायर साइकिल जहां पे भी डिस्टरबेंस आ जाता है, समझो कि आपके शेड हो चुके पर न्यू ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, तो हेयर फॉल नॉर्मल हो रहे हैं, बट उसके बाद न्यू ग्रोथ नहीं हो रहे हैं. और समझो और किसी इंटरनल आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पे ये पूरी ग्रोथ साइकिल में डिस्टरबेंस आ रहा है, और उसकी वजह से आपका हेयर के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं. So growth rate we all are aware of कि that hair grows about 0.5 inches, यानी 1.25 centimeter per month, depending on the factor like a nutrition, hormones आपके कैसे बैलेंस है, एंड ओवरऑल हेल्थ. यानी हम सभी को पता है हम कि ऑलमोस्ट हमारे बाल ये ½ इंच जितने बढ़ते हैं हर मंथ पे. इसीलिए जो मेल पर्सन रहते हैं उनको 15 days या 1 month पे हेयर कट करवाने पड़ते हैं, क्योंकि उतने बाल उनके बढ़ जाते हैं. सो वी आर कंप्लीटली अवेयर ऑफ दैट. अभी ये रिसर्च बता रहे हैं, according to American Academy of Dermatology, it's considered normal to naturally lose loss between 50 to 100 hairs per day. So ये बहुत नॉर्मल है, बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है? नॉर्मल है कि 50 to 100 हेयर्स आपके हेयर फॉल यानी लो लॉस हो रहे हैं नेचुरली, बट उसके बाद न्यू ग्रोथ नहीं हो रहा है, दैट्स क्रिएट बाल्डनेस. सो की पॉइंट्स अबाउट हेयर नॉर्मल हेयर लॉस इज रेंज अबाउट 50 to 100. हेयर ग्रोथ साइकिल, द शेडिंग इज पार्ट ऑफ द नेचुरल हेयर ग्रोथ साइकिल. जैसे हमने देखा, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज इज ऑल अबाउट दिस शेडिंग, where old hair fall out to make a room and new ones grow. When to worry? If you notice a significant increase in hair loss beyond this range, it could indicate a potential hair loss issue, and consulting the doctor is recommended. Even though one more thing which I already added, कि आपको, if the hair loss is there 50 to 100 but you are not having new growth, the both the side you have to consult the doctor, or you have to follow the ritual which we learn in the our workshop. So we all are again aware of about the melanin which which give us the color.
तो मेलेनिन जो हेयर की स्पेस में जो मेलेनिन है, यू मेलेनिन हो गए आपके हेयर के रूट्स में, तो वो ब्राउन कलर और ब्लैक कलर देते हैं। फ्यू मेलेनिन इज रेड एंड ब्लॉन्ड कलर होते हैं उनके हेयर। और ग्रे हेयर ऑकर्स व्हेन मेलेनिन प्रोडक्शन डिक्रीज विथ एज और ड्यू टू पित्त एग्रेवेशन। तो जो हमें व्हाइट बाल आ रहे हैं, जिसे हम ग्रेइंग हेयर ग्रेइंग कहते हैं, वो आपकी मेलेनिन प्रोडक्शन बंद हो जाने की वजह से हो रहा है। So in now we just till this we learn about the modern science perspective. अभी हम आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव से इसे जानेंगे। तो इन आयुर्वेदा जैसे मॉडर्न साइंस में केराटिन प्रोटीन से बना बताया जा रहा है, वैसे इन आयुर्वेदा हेयर हेल्थ इज डीपली कनेक्टेड टू द बॉडीज इंटरनल सिस्टम एंड इज कंसिडर्ड अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अस्थि धातु। तो हमारा शरीर अगर यानी आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से ये आपकी अस्थि धातु की मल यानी बाय प्रोडक्ट है, हेयर स्किन एंड नेल। एज पर आयुर्वेदा वी हैव अ सेवन धातु: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। रस, आप जो खाना खाते हो उसमें से आपको रस मिल रहा है। रस धातुअग्नि से रस पचित होने के बाद आपको रक्त बन रहा है। रक्त के बाद रस, रक्त, मांस, मांस के बाद मेद और मेद के बाद अस्थि। बट वंस फैट मेटाबॉलिज्म इज नॉट प्रॉपर इन अवर बॉडी, तो उसके बाद वो अस्थि को अच्छे से बना नहीं पाता है। और समटाइम्स योर बोन्स मेटाबॉलिज्म यानी अस्थि धात्वाग्नि इज नॉट प्रॉपर, तो दे आर नॉट, the body is not able to make a byproduct properly, and that's why there is a imbalance in your body, in your dhatuvagnis, and in because of that imbalance you have a hair health issue. तो हमारे जो रस, रक्त, जो सात धातु है उसकी धात्वाग्नि जब इम्बैलेंस होती है, अग्नि जब अपनी इम्बैलेंस होती है, तब अस्थि धातु के बाय प्रोडक्ट अच्छे से नहीं बनते हैं, जो है नेल, स्किन एंड हेयर। सो एस हम सभी को पता है आयुर्वेदा के हिसाब से जैसे तीन दोषा है हमारे, वात, पित्त एंड कफ। तो ये जो तीन दोष है वो हमारे 5 एलिमेंट से भी कनेक्टेड है। तो वात दोष है जब हमारी शरीर में पृथ्वी और एयर का, सॉरी, ईथर, स्पेस और एयर का हमारा बैलेंस रहता है, तब वायु बैलेंस रहता है, आकाश एंड वायु। फिर हमारा कफ धातु, जब पृथ्वी एंड वाटर हमारा बैलेंस है तब हमारा कफ धातु बैलेंस है। और जब हमारे वाटर और फायर एलिमेंट बैलेंस है तब हमारा पित्त धातु बैलेंस है। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे केस में पित्त धातु के, पित्त दोष के इम्बैलेंस की वजह से ज्यादातर हमें हेयर के इश्यू होते हैं। मैं ज्यादातर बोल रही हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम, बट इट्स नॉट अबाउट इफ द बैलेंस ऑफ imbalance of वात एंड imbalance of कफ, due to also we have a some issue of hair health. So everyone is ready for with pen and paper. You have a pen and paper with you. So if you don't have, take a 2 minutes and just take a pen and paper with you. So we will first identify the Prakruti. ओके, सो आई होप आप सभी ने पेन एंड पेपर ले लिया है। लेट्स वी मूव फर्दर टू आइडेंटिफाई अवर प्रकृति। सो वी हैव सम क्वेश्चन आंसर साइको सब टेस्ट। You just identify whatever the answer for you. We have a three option: V, P and K. So you have to write, identify if you have a this personality within you, then you have to write down V. तो आपको V अलग से लिखना है, 1 नंबर, V 2 नंबर, 3 नंबर, वैसे करके। या फिर V एक साइड लिखो, P एक साइड लिखो, K एक साइड लिखो। Understood? Everyone just on your video so I can acknowledge everyone with me and just identifying your Prakruti. Yeah, thank you so much. Yeah, I know this is time for the kitchen and everyone is making dinner and everything. So you can and be with me right now. You just acknowledge and then if you wish कि अभी मैं वो किचन में हूँ तो मैं नहीं लिख पा रही हूँ, that is completely okay. We will provide the recording. With recording, you just identify your Prakruti. Yeah.
ओके, एंड इवन दो अभी भी कुछ मिस हो जाता है, आफ्टर दिस कॉल ऑल्सो यू कैन identify. So let's very simple way. I am just guiding you with the Hindi and English, both the language. Don't worry. So first of all, you have to check your body frame. Your body frame यानी आपका बॉडी का लुक कैसा है. थीन, लाइट एंड डेलिकेट बिल्ड है, यानी बोन्स ज्यादा दिख रहे हैं, मांस कम दिख रहा है, फैट कम दिख रहा है. देन यू जस्ट राइट इट डाउन वी. मीडियम बिल्ड विद गुड मसल स्टोन, यानी बहुत फैटी भी नहीं हो बट बहुत पतले भी नहीं हो. देन राइट इट डाउन पी. एंड स्टर्डी ब्रॉड एंड हैवी अ बिल्ड, यानी एक तो हैवी है, कोई पार्ट आपका एकदम फैट ज्यादा है, और इवन दो बॉडी भी आपको हैवी लग रहा है आपका. देन यू हैव टू राइट इट डाउन के. आई होप आप सभी ने अक्नॉलेज कर दिया है आपका बॉडी फ्रेम. नाउ वी जस्ट मूव टूवर्ड द स्किन. Skin, if you have a dry, rough or prone to cracking, tense easily, then you have to write it down V. ये आपको सिंपली समझ में आता है जब आप ठंडी की सीजन में होते हो, तो ये वात की वी वाले लोगों को तुरंत ही ड्राइनेस दिखती है, एंड लाइक इमीडिएटली वो लाइंस दिखती है जब आप सिर्फ नाखून लगाते हो तो भी. सो इफ यू हैव अ ड्राई, रफ एंड प्रोन टू क्रैक, और टेंस यानी तुरंत ही टैन हो जाती है धूप में, देन यू हैव टू राइट इट डाउन वी. पी, वार्म, सेंसिटिव और प्रोन टू रेडनेस एंड रैशेस, यानी धूप में निकलते हो तो तुरंत यहाँ पे लाल लाल हो जाना, कभी कभार छोटी छोटी फुडलियां हो जाना ऐसा, या हाथ पे आपको कभी कभार सेंसिटिवनेस हो जाती है, या नॉर्मल भी कोई गर्म चीज आपने अब एक्सपोजर आ गया तो इमीडिएटली आपको वहां पे हीट और जलन होना स्टार्ट हो जाता है. देन यू जस्ट राइट इट डाउन पी. के, स्मूथ, ऑयली एंड कूल टू टच स्किन, यानी बहुत स्मूथ है, आपको ठंड की सीजन में भी बहुत अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और बहुत नॉर्मल और थिक स्किन रहती है, दैट इज के. नाउ हेयर, ड्राई, ब्रिटल और फ्रीजी हेयर है. देन वी. पी, फाइन, स्ट्रेट और प्रोन टू प्रीमेच्योर ग्रेइंग, यानी आपको बहुत जल्दी बहुत वाइट बाल आ गए हैं, वो अच्छे से स्ट्रेट है, तो पी लिख सकते हो. एंड के, और ये हेयर के बारे में और आगे हम जानने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ प्रकृति के हिसाब से आप अभी लिखो, शायद आपके प्रकृति के हिसाब से बाद में आपका चेंज भी हो सकता है. देन थिक, ऑयली एंड शाइनी, और उसका क्या रीजन है वो भी आज हम देखेंगे. थिक, ऑयली एंड शाइनी है, एक दो दिन बाल आपने अभी धोए नहीं है तो बाल एकदम ऑयली हो जाते हैं. देन के. तो वी, बहुत ड्राई बाल है. पी, फाइन, स्ट्रेट पर बहुत वाइट बाल होने लगे हैं. और के इज लाइक थिक, ऑयली एंड शाइनी बाल है, ऑयल आपका बहुत छुटता रहता है बालों में. आईज, स्मॉल, ड्राई एंड रेस्टलेस, यानी वात प्रकृति, यानी वी वाले लोगों की आंखों में है ना, काफी टाइम उनको खुजली भी ऐसे आती है, तो ड्राई हो जाती है, कभी कभार आंखों को बहुत, जैसे लैपटॉप का एक्सपोजर आ गया तो उनको आंखों में जैसे थोड़ा सा एक धुंधलापन दिखने लगता है, दैट इज ड्राई आई बोल सकते हैं उसे, जैसे उसमें मॉइस्चर नहीं है. पी, शार्प, पेनिट्रेटिंग एंड मीडियम साइज आई, यानी कोई इश्यू नहीं होती है, खाली आप धूप में जाते हो तो पी वालों को थोड़ी जलन होती है. के, लार्ज, काम एंड मॉइस्ट आईज, तो उनकी नॉर्मल के की कंडीशन में ना आपको जलन हो रही है ना आपको खुजली आ रही है, नॉर्मल आईज है, दैट इज द के कंडीशन. सो टिल दैट आई फील कि एवरीवन इज विथ मी. नाउ एपेटाइट. इफ यू आर अ वी टाइप, आपका हर किसी में अलग अलग आ सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि शुरुआत में कहीं पे वी आ रहा है और यहाँ पे पी आ रहा है, दैट इज कंप्लीटली ओके. ओके, गो विद द ओनली वी, पी एंड के, फिर एंड में आपको मैं बताऊंगी कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कि आप कौन सी प्रकृति में हो. सो एपेटाइट इज वी, इरेग्युलर, कभी भूख लग रही है कभी नहीं लग रही है, कोई भी टाइम पे खाना खाने का मन कर रहा है, कभी कभार आप स्किप भी कर लेते हो, कभी कभार आप मील स्किप भी नहीं कर सकते हो. तो दिस काइंड ऑफ द प्रकृति लाइक अ इरेग्युलर एपेटाइट इज अ वी. पी इज अ स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट, यानी उसको उसके टाइम पे खाना चाहिए ही, लाइक यू गेट इरिटेबल इफ यू मिस अ मील. इफ यू मिस अ मील, हेडेक स्टार्ट हो जाता है, पेट में जलन, अनइजीनेस स्टार्ट हो जाती है. देन पी. के इज स्टेडी बट स्लो, यू कैन गो विदाउट ईटिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड.
ओके, एंड इवन दो आप थोड़ा भी खाना अच्छे से खा लेते हो तो भी आपको चल जाता है। फॉर वात, फॉर वी, उसको अच्छे से खाना चाहिए, जब भी चाहिए उसको अच्छे से खाना चाहिए। बट फॉर के, जब भूख लगेगी तब आपने थोड़ा भी दे दिया, दे आर वेरी सेटिस्फाइड एंड दे आर इन दैट स्पेस कि थोड़ा भी खाना खा लेते हैं पर उनका बॉडी अच्छे से बन के रहता है। दे आर नॉट लाइक, जैसे हमने आगे भी पढ़, उनका बॉडी फ्रेम हैवियर रहता है। एनर्जी लेवल, फॉर वी इट इज अ वेरिएबल, कभी कभार बहुत एकदम बर्स्ट ऑफ द एनर्जी फॉलोड बाय फटीग, यानी कभी कभार इतनी एनर्जी उनमें रहती है बट धीरे 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 जैसे वो एकदम एनर्जी से काम कर रहे हैं फिर एकदम से थक जाते हैं, पूरा ड्रेन हो जाते हैं इन वी कंडीशन। बट इन पी कंडीशन हाई एंड इंटेंस एनर्जी है, वो करते ही रहते हैं, वो थकते नहीं है बट वो इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। But you may overexert yourself, and after that, you start irritate and frustration and stress. You feel stress after that. And K is a slow and steady. यू कंजर्व एनर्जी वेल, यानी आपको करना है, होता है, चलता है, हो जाएगा, यू आर इन दैट स्पेस। सो फॉर वी एंड पी कंडीशन दे बोथ आर वेरी एक्टिव, but in V condition after some times they feel fatigue and low energy, but in P condition they don't feel a low energy, they feel irritation, anger, frustration with that। तो एनर्जी वो बना के रखते हैं बट उसके साथ उनके इमोशंस इम्बैलेंस होने लगते हैं। टेम्परामेंट अगेन जैसे वी ओवर काम कर लेता है, एक्टिव रहता है, बट आफ्टर दैट फटीग की वजह से एंशियस, वरीड और इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फॉर पी इट्स असर्टिव, कॉम्पिटिटिव और प्रोन टू एंगर, इम्पेशंस रहते हैं, उनको हर चीज में लाइक इनपुट डालना रहता है, वर्क करना रहता है, प्रूफ करना रहता है, आगे बढ़ना रहता है, एकदम एक्टिव रहते हैं। फॉर केस काम, स्टेडी, लेजी एंड इजी गोइंग। Sleep patterns, V is light sleeper, prone to insomnia, or sometimes this insomnia create more vayu imbalance in that space. So जो बोलते हैं ना रात को नींद ही नहीं आ रही है, sleep issue है, in that space we can consider V. P, moderate sleep, you wake easily but fall back asleep quickly. ये लोग जल्दी उठ सकते हैं बट रात को उनको नींद जल्दी आ जाती है, वो रात बहुत देर तक जाग नहीं सकते। इन वी कंडीशन दे आर कंप्लीटली एबल टू डू द नाइट आउट, वो पूरी रात भी जाग सकते हैं, बट इन पी कंडीशन दे आर नॉट एबल टू। नहीं तो उनको है ना एकदम एसिड रिफ्लेक्शंस एंड एवरीथिंग स्टार्ट हो जाता है, हेडेक एंड ऑल, या फिर उनको कुछ ना कुछ फूड लगता है। फॉर की कंडीशन डीप स्लीपर, डिफिकल्ट टू वेक अप इन द मॉर्निंग, इन लोगों को सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है और इनकी स्लीप बहुत साउंड स्लीप रहती है। नाउ मेमोरी, सो फॉर वी इजीली लर्न कर लेते हैं बट फॉरगेटफुल, शॉर्ट टर्म उसकी वो मेमोरी रहती है। फॉर पी इज अ गुड मेमोरी, यू रिमेंबर डिटेल्स वेल, it is a balanced memory, not the V kind of and not a K kind of. P is a balance, but for K is slow to learn but excellent for the long term memory, यानी वो अभी एकदम धीरे धीरे बहुत सवाल पूछ के सीखेंगे बट उन्होंने जो भी सीखा होगा फिर एक बार सीख लिया, फिर वो कॉन्सेप्ट उनको कभी भी आगे जाके समझना नहीं होता है। वी कैसे तुरंत सीख लेता है बट आगे जाके उसको फिर भी उसमें से कुछ सवाल रहते हैं और फिर आगे जाके और कुछ एड ऑन उनको समझना रहता है, दैट इज द वीक कंडीशन। पी इज अ बैलेंस कंडीशन, नॉट टू वीक लर्नर, not too slow learner but the balanced learner and remember details as well, or they can create some possibilities के अपने हिसाब से भी कुछ create कर लेते हैं। Stress response, well, V for V, nervous, restless और anxious under stress, वो पूरे जैसे मैंने बताया एंजाइटी और वरी रहती है, स्ट्रेस रहता है, फियर रहता है वी केस में। सो अकॉर्डिंगली सेम थिंग, नर्वसनेस एंड रेस्टलेसनेस एंड एंशियस रहता है वो कभी भी उनके स्पेस में जब स्ट्रेस आ जाता है। जब स्ट्रेस की कंडीशन, कुछ पैनिक कंडीशन आ जाती है तो ड्यूरिंग दैट पी फॉर पी,
इरिटेबल, एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड, जब वो कोई भी पैनिक कंडीशन आ जाती है तब पी कंडीशन वाले इरिटेबल, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है उनको, एंड एंग्री, गुस्सा दिखाने लगते हैं, इम्पेशंस हो जाते हैं। फॉर के कंडीशन दे आर जस्ट विड्रॉ, लिथार्जिक एंड ओवरली रिलैक्स्ड अंडर स्ट्रेस। वो कोई भी पैनिक होता है तो उनका अभी ये मेरे से तो कुछ नहीं होगा, मैं हार मान लेती हूँ, दे आर इन दैट द विड्रॉल कंडीशन and they are not putting any effort of this. After that they are like being that space के वो कहीं ना कहीं फिर बहुत डाउन स्टेट में चले जाते हैं। वेदर प्रेफरेंस, यहाँ पे जब पी वी कंडीशन है दे डिसलाइक कोल्ड, और वीडी कंडीशन उनको वार्म वेदर पसंद आता है, प्रीफर वार्म वेदर, डिसलाइक कोल्ड और विंडी कंडीशन, यानी उनको ठंडा वातावरण इतना सूट नहीं होता है, जॉइंट स्टीफ हो जाते हैं या बहुत ड्राई स्किन हो जाती है, रैशिश आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाती है स्किन पे, लाइक दिस। फॉर पी प्रीफर कूल एनवायरमेंट, डिसलाइक हीट एंड सन, and K prefer warm and dry climates, dislike cold and damp conditions. So this is जैसे इट इज इजी, पी वाले कूल एनवायरनमेंट को पसंद करते हैं, ठंडे वातावरण को, और उनको गर्मी और सन एक्सपोजर पसंद नहीं आता है, और उनको जलन और हीट टैन टैन होने लगती है स्किन, और सेंसिटिव यानी रेडिश, टैन से ज्यादा रेडिशनेस हो जाती है। और फॉर के वार्म और ड्राई क्लाइमेट उनको पसंद आता है। एक्टिविटी में वी अगेन हमने जैसे देखा, हाईली एक्टिव, energetic and enjoy everything. P is enjoying competitive और goal oriented activity, यानी उनको कॉम्पिटिटिव जिस क्रिएशन करके आगे बढ़ना, अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ क्रिएट करना, उस हिसाब से एक्टिव रहते हैं। वात वाले पूरे एक्टिव रहते हैं, जो मिला करते जाओ करते जाओ करते जाओ, विदाउट लाइक एनी पुटिंग माइंड। एंड फॉर केस प्रीफर स्लो, स्टेडी एंड रिलैक्सिंग एक्टिविटी। डाइजेशन, फॉर वी इरेग्युलर डाइजेशन होता है, कभी उनको अच्छा रहता है डाइजेशन, कभी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ब्लोटिंग रहता है, गैस रहती है। फॉर पी स्ट्रॉन्ग डाइजेशन में फील्स डिस्कम्फर्ट विथ स्पाइसी और ऑयली फूड। इसका डाइजेशन इनका बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, पर जब स्पाइसी एंड ऑयली फूड आता है तो उनको थोड़ा डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, बट इनकी मोशंस बहुत अच्छे से रेगुलर रहती है। स्लो डाइजेशन के फील हैवी आफ्टर ईटिंग एंड ऑल्सो दे फेस समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन, यानी के वालों की स्लो डाइजेशन रहती है और खाना खाने के बाद उनको बहुत हैवी लगता है। क्रेविंग, फॉर वी क्रेव ड्राई, क्रंची एंड लाइट फूड की क्रेविंग उनको हमेशा रहती है। फॉर पी स्पाइसी, सॉल्टी एंड सॉर फूड की रहती है। और फॉर के क्रेविंग स्वीट, हैवी एंड क्रीमी फूड की उनको क्रेविंग रहती है। क्रेविंग डबल बार हो गया, कुछ नहीं। एलिमिनेशन, जैसे मैंने बाउल्स की मूवमेंट्स बता ही दी है फिर से। फॉर बी रेगुलर, इरेगुलर बाउल्स मूवमेंट, कभी कॉन्स्टिपेशन है कभी रेगुलर है। फॉर बी रेगुलर नॉर्मल है, होता है, कभी कभार कुछ ऐसा खाना खा लिया, then may experience occasionally diarrhea. In P condition, regular bowel movements, but may experience sometimes because of some food, occasionally diarrhea. For K, slow bowel movements, stool are solid and heavy. So for V, it is irregular, diarrhea or constipated, or normal or constipated, then normal and slow, solid and heavy, and may so many times constipated. For the K, craving हमारा हो गया। तो टिल दिस होप सभी ने कर लिया अपना। यस, एवरीवन डन विथ योर्स? यस, नाउ वॉट एवर द वी काउंटेड, पी काउंट एंड के काउंट, okay, and share with me, so I will guide you little bit, so as per your and other people also acknowledge that. Okay, directly P or K लिख दिया हुआ, how does it get better? But some people just write it down, how much V are there, P are there and K are there. So yeah,
Thank you so much, everyone. Yeah. Okay, I will wait for a few. Huh. I'm just looking for this kind of condition. Okay, so whoever is like, see, now no one is sharing here, so मेरा chat ऊपर नीचे नहीं जाएगा. बस अभी आप यहाँ पे hold कर दो. Okay, so in the case of Zorin, it is 8V. Okay, so we can more in that space के Zorin के case में वात प्रकृति prominent है. ठीक है, ज्यादा उसमें उनको वात प्रकृति के डाइट प्लान्स वगैरह उनके फॉलो करने चाहिए, बट साइमल्टेनियसली you have to maintain your pitta prakriti also, because that is the 4 count. Yeah, but if we can see in the Sital case, vat is a 3, pitta is a 12 and k is a 1, then in Sital case you have to more focus on the pitta prakriti. But if we say about the Zorin case, so she has to more focus on the Vat Prakriti, but also simultaneously focus on the Pitta Prakriti. So whatever she is utilizing as a Vat, but she has to notice for the Pitta Prakriti also. And in the ये मुझे नाम थोड़ा गुडविन करके है, उनकी P7, K7 and V1 है, तो he has to or maybe she has to balance pitta and kapha, both the aspects. So whatever the food plan and ahar vihar and vichar plan, whatever we are providing in the workshop, he has to balance both the side, pitta and kapha. Pitta kapha prakriti we can say for him. And then I can say for Redmi Note 9 Pro, उनके लिए जैसे पित्त 8 है तो मोर फोकस ऑन द पित्त प्रकृति, बट साइमल्टेनियसली बैलेंस द कफ दोषा एज वेल एज. सो आई होप एवरीवन इज विथ मी. लाइक मैंने जैसे बताया, शीतल जी का क्लियर है कि शी हैज टू ओनली फोकस ऑन द वात प्रकृति, सॉरी पित्त प्रकृति, या बिकॉज द 12 काउंट बस. बट सम इज अ नियर बाय सम काउंट्स, देन यू हैव टू focus on the main prakriti, but simultaneously you have to balance your second prakriti as well as. Clear this aspect, everyone? Mine is 3P. Okay, so Geeta ji, you have to more focus on the pitta prakriti. Yes, because it's a 9 and 3 is a lot gap. Okay, so that is the main prakriti is pitta. So maybe some क्या बोल सकते हैं उसको, sorry, gray hair and some sensitiveness in your body. Yeah, maybe some itchy scalp is also, sensitive scalp is also there, or you can just check it out. We will go through that aspect also. So yeah, Smita ji, you have to focus on pitta first, but simultaneously vat also. Yeah, Lakshmi ji, you have to more focus 3 dosha. तीनों दोषों पे आपको फोकस करना है, एंड बैलेंस ऑल द नॉर्मल. आपके डाइट पे आपको बहुत ही बैलेंस लाना है. सो नाउ वी जस्ट फोकस ऑन अवर हेयर, बिकॉज हम यहाँ पे हेयर के लिए भी है. यस, सो मेनी टाइम व्हाट हैपन, मैंने अभी तक बहुत सारे हेयर वर्कशॉप लिए हैं, और जहां से मैंने ये एक चीज समझी है, सो मेनी टाइम्स हैपन दैट अवर प्रकृति इज डिफरेंट बट अवर हेयर क्वालिटी इज डिफरेंट. ओके, जैसे मैंने अभी गीता जी को बोला आपका सेंसिटिव स्कल्प है, तो शी इज सेइंग नो. ओके, बट हर प्रकृति इज पिट, but maybe because of we are doing a lot of treatment on our hair, so many times our hair quality become a vat type, or maybe become a कफ टाइप, और मे बी बिकम अ पित्त टाइप, यानी आपकी प्रकृति से काफी डिफरेंट हो जाते हैं. समझ में आ रहा है? ऑन योर वीडियो प्लीज एंड गिव मी थम्स अप सो आई कैन एक्नॉलेज दैट यू ऑल. इट्स नॉट अबाउट दैट दिस इज द फ्री कॉल, सो इट इज नॉट अबाउट कि मैं ऐसे ही बोले जाऊंगी और चल जाएगा. आई फील कि यहाँ से भी आप बहुत सारी चीजें लेके जाओ जिससे आपको समझ में आए. या इट्स ऑल अबाउट दैट. So that's why I feel कि you just on your video and hello Abhaji, show me this thumb, okay? Because I know Pooja is not allowing you to unmute her right now, okay? So just show me the thumb. So, okay, right now we are, we move further about the, this hair type. So, ये हमारा हो गया. चलो. So now just listen me first. We just explain simply. Now you have an idea
that what is your prakriti and what kind of this food habit, and you have to change everything according your prakriti. या अभी नाउ इसको सबको भूल जाओ, उसको साइड में रख दो. ओके, अभी नाउ वी जस्ट फोकस ऑन अवर हेयर टाइप. सो इफ यू हैव अ ड्राई ब्रिटल हेयर का मतलब ये है कि आपके जो बाल है वो बीच से टूटते हैं. It's not about the hair fall from the follicles, but hair fall from the in between the hair. Then it is all about, and again the two split ends in your hands. Okay, split ends बन जाते हैं, जो हम बोलते हैं दो मुंहे बाल बन जाते हैं. That is the Vata type hair. Okay, I am not telling the Prakruti. Okay, listen me. This is your Vata type hair. Dry scalp, ब्रिटल हेयर यानी बीच से टूट जाना, स्प्लिट एंड्स एंड माइक्रो डैंड्रफ बिकॉज ऑफ योर ड्राइनेस. Listen me each and every word, okay? Understood? So if you have a this kind of all the things now, then you have a Vata type hair, and you have to follow all the remedies and everything according to Vata type. Clear? Yeah. Now second, if you have a Pitta type scalp or hair, देन वन इज द प्रीमेच्योर ग्रेइंग, जो मुझे है बहुत अच्छे से. ओके, 9 साल के बहुत अच्छा स्ट्रेस और वगैरह रख के मैंने बनाया है मस्त सुंदर से सुनहरे बाल. ओके, एंड देन यू हैव अ सेंसिटिव स्कैल्प, यानी यू हैव अ मे बी स्मॉलर, जो हम फोड़िया बोलते हैं ना, छोटी छोटी पिंपल्स काइंड ऑफ, दैट मे बी यू हैव अ सम रेडनेस इन योर स्कैल्प. समटाइम्स यू हैव अ very itchy, but not that kind of itchy which we can say dandruff की वजह से itching होता है, but वो sensitiveness की वजह से itching होता है. That is the pitta type. It's not too much oily but not too much dry. Clear for pitta type. Okay, and if you have a kapha type hair, then that is the very oily scalp, यानी एक दो दिन आपने बाल नहीं धोए तो it is you feel that oiliness in your head, that scalp is oily, your hair is very thin but also oily again. Because of this oiliness, if you are not taking care of your cleansing process, some pores are clogged and it's create a infection and it create a dandruff. Okay, and that dandruff because of the cuff type of hair type. Clear? So if you have a cuff type, thick hair रहेगी, इतनी dryness नहीं रहेगी, but your scalp is very much oily and you have to take care. हाँ, मैं अभी वो रीड कर रही हूँ, उसमें भी वापस आ जाएगा, बट मैंने सोचा आप लोगों के ऐसे ऐसे फेस देख के भी समझ जाओ ना कि मैं जो बोल रही हूँ वो आप सब समझ में आ रहा है. भले मेरे सामने 5 से 6 फेस है, बट आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोग हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, यानी मैं जो बोल रही हूँ वो कहीं ना कहीं पहुंच रहा है. So let's we move towards the slide and we again explain all the types. What again, thin, dry and brittle. Hair tends to be frizzy और tangled, यानी आपको जल्दी से उसमें से डिटेंगल करना इजी नहीं होता है, नीचे नीचे कभी कभार बहुत सारी पूंछ भी बन जाती है. Scalp often feels dry, leading to dandruff because of that dryness. Okay, always remember. Hair is prone to split ends and hair fall due to breakages. जैसे मैंने बताया, ज्यादातर बीच से टूटते हैं बाल. Growth may be slower. In pit, fine or medium texture with a tendency to be straight. Hair is soft but prone to premature graying. Scalp is sensitive and prone to inflammation, and because of this inflammation you have a itchy scalp. And hair often fall out due to excessive heat in your body. यानी तो यहाँ तो सेंसिटिवनेस है और अगेन आपकी प्रकृति भी पित्त है, एंड इसकी वजह से आपके ज्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं एंड ग्रे हेयर हो रहा है. एंड अगेन सी हियर इज द हेयर फॉल इज, बात से क्या हो रहा है, बीच से टूट रहे हैं ज्यादातर,
और यहाँ से बहुत कम हो गए क्योंकि फॉलिकल में इतने डैंड्रफ के इश्यू नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है. सो दैट्स व्हाई हेयर फॉल इश्यू, it's because of the dryness and brittle hair. And for pith is because of the sensitive scalp, inflammation, and due to that inflammation and itchy scalp and excessive heat in the body, इसलिए hair fall issue है. And for cough is thick, oily and shiny hair. Hair has a strong roots and is less prone to breakage. But scalp is oily, leading to clog pore, and it's create an infection and it create a dandruff, and due to that infection and dandruff and clog pore, you are maybe facing the hair fall issue. And a growth is slow due to poor circulation because of that clog pore. So I hope this is the completely clear for everyone. Yes, easy to understand your hair type. Okay, as per that you have to take care of your hair health. सॉरी, मुझे थोड़े खुले बाल पसीना देते हैं जब मैं कभी पढ़ाती हूँ ना. सो हाउ डज इट गेट बेटर? लेट्स वी मूव फर्दर. ओके, सो अकॉर्डिंग टू, अगेन ये हमने वैसे समझ लिया है, इसे हम और समझते हैं और फिर आगे और रिपीटेडली आएगा जिससे आपको मोर क्लैरिटी आएगा. इफ यू हैव अ वात टाइप हेयर, अब नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रकृति, सो जस्ट forget what is your prakriti right now and just focus on your hair type. So if you have a vata type hair fall due to dryness, प्रीमेच्योर थिनिंग, पतले होने लगते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं और उसकी वजह से बीच से टूटते हैं. लैक ऑफ लस्टर एंड वॉल्यूम, डेंड्रफ ड्यू टू ड्राइनेस. नाउ पित्त, प्रीमेच्योर ग्रेइंग, ये सब हेयर प्रॉब्लम्स की बात मैं कर रही हूँ. एक्सेसिव हेयर फॉल or thinning because of, I just say, irritation, redness, sensitiveness, and even though maybe heat in body is, it's all condition create a hair fall. तो जहां जहां पे भी आपको ये redness है, sensitiveness है, वहां पे I will again explain everything in proper Hindi also. And kapha, oily scalp leading to clog pore and dandruff. Heavy hair may lack volume or appear flat. Slower hair growth due to poor circulation. So now just again I just simply explain in Hindi. जब आपके वात टाइप के हेयर है तो आपकी स्कैल्प बहुत ड्राई रहेगी, आपके बाल नीचे से दो मुंहे रहेंगे और ज्यादातर जो हेयर फॉल हो रहा है वो बीच से बाल टूट रहे हैं, नहीं कि आपके यहाँ से. और यहाँ पे जहाँ समझो आपको हल्का हल्का सा डेंड्रफ दिख रहा है, वो डेंड्रफ, और वो डेंड्रफ नहीं है, वो ड्राइनेस का डेंड्रफ है. जब हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, हम ऐसे रैश करते हैं तो कैसे व्हाइट व्हाइट निकलता है, दैट काइंड ऑफ ड्राइनेस का जो व्हाइट स्किन पार्ट रहता है, वो ड्राइनेस का डेंड्रफ, माइक्रो डेंड्रफ इसे हम बोल सकते हैं, ड्यू टू ड्राइनेस. दैट इज द वात टाइप. और उसी की वजह से उनको ईचिंग एंड उनको हेयर फॉल इश्यू है. नाउ पित्त टाइप में क्या है, आपकी स्कैल्प है ना बहुत सेंसिटिव होती है. रेडनेस, कभी आप धूप में भी गए तो पूरी रेडनेस कहीं कहीं पे आपको हो जाती है, या आपको फोडलिया हो जाती है, या आपको ईचिंग आती है बिकॉज ऑफ के वो रेडनेस की वजह से, या फिर वो धूप की सेंसिटिविटी की वजह से आपको इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसकी वजह से आपको खुजली आ रही है, नॉट बिकॉज ऑफ द डेंड्रफ. और उसी की वजह से आपके हेयर फॉलिकल डैमेज होने लगते हैं और यहां से आपका हेयर फॉल होना फॉलिकल से स्टार्ट हो जाता है. क्लियर? और फॉर कफ टाइप, वो ऑयली स्कैल्प रहता है, यानी आपने एक दो दिन बाल नहीं धोए तो आपके बाल एकदम चिपट चिपट हो जाते हैं. हेयर आपके अच्छे रहते हैं कफ टाइप में, बट यहाँ पे हो क्या रहा है, जब आप कफ ऑयल हो रहा है और आप इस ऑयल की केयर नहीं ले रहे हो, हेयर वॉश टाइम टू टाइम नहीं कर रहे हो, तो वो ऑयल की वजह से इन्फेक्शन होता है. जो डस्ट वगैरह बैठती है वो पकड़ के रखती है और वो इन्फेक्शन क्लॉग पोर कर देती है, यानी आपके पोर को क्लॉग कर देती है, बंद कर देती है, और उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत कम होता है और वहां पे इंफेक्शन होता है, और इन्फेक्शन की वजह से डेंड्रफ होता है और जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है. क्लियर है? यस. सो नाउ अगेन वी मूव टूवर्ड्स दी अवर हेयर प्रॉब्लम, क्योंकि हम यहाँ पे हेयर प्रॉब्लम्स को पहले समझने के लिए आए हैं, ठीक है ना. सो हम सिंपली फिर से एक बार हेयर प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं. अगेन हेयर फॉल हमने सब जगह पे समझाया. वात पे बीच से हो रहा है, ब्रिटल हेयर बिकॉज ऑफ दिस ड्राइनेस.
पित्त में सेंसिटिव स्किन की वजह से, और इवन दो यू हैव अ पित्त प्रकृति, तो दोनों मिलके ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। एंड फॉर कफ, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन, क्लॉग और पुअर सर्कुलेशन, हेयर फॉल हो रहा है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हेयर फॉल इश्यू इज कंसिडर इनटू द पित्त एंड वात टाइप. If you are taking care of the cough type and you are washing hair regularly, then you are not facing much issue of the hair fall. So dosha imbalance is pitta, heat in body, and with bath is dryness and stress. पुअर डाइजेशन वीकन्स द हेयर रूट. अग्नि जैसा हमने बात की, हमारी जो अग्नि है वो बैलेंस रहती है, तो डाइजेशन बैलेंस होगा, तो ऑब्वियसली वी गेट दैट बैलेंस अस्थि धातु. एंड अस्थि धातु में से हमें वो मल जो हमारा बाई प्रोडक्ट है एज अ हेयर, बोन्स एंड हेयर, नेल्स एंड स्किन, वो हमारी अच्छे से डेवलप होगी. एंड accumulate of toxins, even though if we don't have a proper digestion, as per the ayurveda, if we don't have a proper digestion, then it's create a arm dosh in our body, and that arm dosh create a dandruff and imbalance in our uh, all the sapta dhatu, and because of that imbalance we are facing the hair fall issue. In modern science, hormonal imbalance, nutritional deficiency, stress, chronic illness, autoimmune disease, or mainly for chronic illness and autoimmune disorder, if we are getting any kind of long term medicines, we are facing this hair fall issue. Then dandruff. Ayurvedic perspective, obviously, as I talk to you, Vat and Pitta, oh, sorry, Vat and Kapha. In Vat, due to dryness, and in Kapha, clog for inflammation, infection, and it's created dandruff. And due to that, it's create a dandruff. फंगल यानी वात में जैसे मैंने बताया ड्राइनेस की वजह से माइक्रो डैंड्रफ हो जाते हैं, और कफ में क्लॉग पॉर की वजह से हो जाते हैं. मॉडर्न साइंस, फंगस ऑन द स्कैल्प, excessive oil production or the dry skin, poor scalp hygiene, or unsuitable hair products, sorry. Premature graying, again aggravation of pitta leads to loss of melanin. हम सभी को यानी शायद काफी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा, मेलेनिन जो है आयुर्वेद के हिसाब से इट इज अ ब्राजक पित्त. पित्त का ही एक प्रकार है, दिस इज द ब्राजक पित्त, and it's balance the melanin. So once your pitta prakriti and your pitta is imbalanced, it's create imbalance in melanin. And most of the time this imbalance pitta prakriti, most of the time it's because of the stress and improper diet. तो जब आप अपनी एज के हिसाब से, आपकी अग्नि के हिसाब से खाना नहीं खाते हैं, या फिर आप बहुत स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल से जा रहे हो, और आपकी स्लीप पैटर्न भी बराबर से नहीं है, क्योंकि हम सभी ने समझा आगे भी कि पित्त की कंडीशन में उनको नींद पहले जल्दी आ जाती है और सुबह नॉर्मली वो उठ जाते हैं, बट उनको जल्दी नींद आ रही है प्रॉपर टाइम से, बट आप इफ यू आर नॉट टेकिंग स्लीप ऑन टाइम, देन इट्स इम्बैलेंस योर पित्त प्रकृति. हेरिडिटरी फैक्टर रोल अ प्ले, यानी जब आप मदर के वूम में हो, उनके कौन से दोषाज इम्बैलेंस है, उनका कैसा खान पीन है, उससे भी आपकी इम्बैलेंस प्रकृति भी होती है. अगेन, इफ योर मॉम हैज अ दिस प्रीमैच्योर ग्रेइंग का टेंडेंसी, देन ऑल्सो यू आर हैविंग दैट premature graying. Modern science, reduction in melanin production in hair follicles, genetic predisposition and oxidative stress, smoking, vitamin D, B12 deficiency, or environmental factor. Now, dry and brittle hair, we all are aware of, due to bath imbalance, lead to dryness and lack of nourishment, poor hydration and lack of oily food in the diet. Modern science, excessive heat styling or chemical treatments, environment damage, and lack of essential fatty acid or hydrations. एंड फॉर द हेयर थिनिंग, पतले हेयर क्यों है, और बीच बीच से ये पूरा गैप आप देख पाते हो, धीरे धीरे हमारी केस में बनने लगता है, हमें दिखने लगता है. दैट इज बिकॉज ऑफ पित्त इम्बैलेंस लीड टू हेयर फॉलिकल्स वीकनिंग, पुअर डाइट, स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप कंट्रीब्यूट टू थिनिंग. नाउ मॉडर्न साइंस, अगेन जो आगे भी पित्त के लिए बताया था, हार्मोनल चेंजेस, क्रोनिक इलनेस, और लॉन्ग टर्म हम कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, स्ट्रेस एंड स्कैल्प condition like
एलोपेशिया, एरिटा एंड एनीथिंग एज अ सेल, जो बोलते हैं ना, रेड पैचेस एंड एवरीथिंग. सो दिस इज वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई योर हेयर टाइप. So now as per your प्रकृति you have to take care of your lifestyle. यानी प्रकृति जो हमने आगे की थी वो प्रकृति है हमारी. उस हिसाब से हमें अपने आहार, विचार और विहार यानी हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव लाने हैं. Okay, if you have a curve prakriti and you are not doing any exercise, and if you have a vata prakriti and you are doing excessive exercise, so you have to balance all this. If you have a pitta prakriti and if you are not taking food on time and you are imbalancing your sleep, you have to take care of that. तो नॉर्मल आपकी कोई भी जो भी प्रकृति है इस हिसाब से आपका खान पीन, लाइफस्टाइल और आपके विचार रहेंगे, तब आपकी ये प्रकृति बैलेंस होगी. और जैसे ही आपकी प्रकृति बैलेंस होगी वो आपकी हेयर हेल्थ को बेनिफिट देगी. तब तक जब तक आपकी प्रकृति बैलेंस नहीं हो रही है तब तक आपकी हेयर की कंडीशन यानी हेयर की टाइप आपको पता है, यू आर अवेयर ऑफ योर हेयर टाइप. तो एज पर योर हेयर टाइप यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्कैल्प एंड हेयर हेल्थ. So if you have a dry hair, so you have to do that nourishment, that oiling, application, everything. If you have a curve type hair, then what kind of वॉश टाइम क्या रखना, यानी आपको दिन में हफ्ते में कितनी बार वॉश करना है. यू हैव टू मेक श्योर इफ यू आर गो आउटिंग फॉर एवरी डे फॉर योर वर्क एंड एनीथिंग, देन you have to take care about that wash care. If you have a cough type, so this kind of small things you have to take care of your hair health. Once you take care both the side, then you will get the beautiful result in your space. Because if you are putting only products on our hair, so they are not giving that much result and long lasting result in our hair health. Because again in the first slide we talked about that कि our hair health is the mirror of our body, mind and emotions. तो जब हमें उसको समझ में आ रहा है and we are not taking care of our body, physical body, mind, mental health and emotional health, then we are actually not actually creating the long lasting benefit on our hair health. Everyone is with me? Yes? Yeah? So in our 3-day workshop, what we are going to cover? Let's we talk about it. So as we all are aware of our hair type, so again हम इसमें भी फिर से पूरा बात करेंगे. व्हाट इज योर हेयर टाइप, अंडरस्टैंड योर कॉमन हेयर प्रॉब्लम जो आज हमने वैसे भी बात कर ली है. लर्न द नेचुरल हेयर ग्रोथ साइकिल एंड एज पर दैट एंटायर स्पेस. आपको जब आपकी प्रकृति, आपकी हेयर टाइप, आपकी प्रॉब्लम समझ में आ गई है, देन वी जस्ट मूव टूवर्ड्स द थेरापी बेस. मुद्रा थेरापी, आयुर्वेदिक डायट चार्ट एज पर योर प्रकृति, detox ritual, like what kind of because the main part is gut and liver health. If we are just balancing our gut and liver health, we are actually balancing our agni. और एक बार हमारी अग्नि को हम बैलेंस करेंगे, हमारे मेटाबॉलिज्म को हम बैलेंस करेंगे, देन वी आर जस्ट रेडी टू बैलेंस अवर दोषास. तो दैट इज द सिंपल डिटॉक्स रिचुअल. इनर नरिशमेंट, हर्बल टीज वगैरह वी विल गाइड यू एज पर योर प्रकृति. देन second day is more about care and nourish. So we talk about the marma point, which is amazing, giving you the result. This is my like I did a lot of hair workshop and people are getting very good result with this marma massage, which I am teaching with the 3 types of marma massage. And this marma massage allow them to reduce their hair fall very easily. Then learn 3 type of Ayurvedic massage, build your personalized hair care routine, correct cleansing and conditioning method, night ritual, every day what kind of ritual you just follow, which allow you to balance your hormones and balance your mental state and emotional health. Okay, so we will provide some marma massage tip during the night and also one guided meditation. Bach flower remedies for the stress management. DIY for as per your हेयर टाइप. हेयर टाइप के हिसाब से आप कौन सा मास्क एंड कौन सा ऑयल आपका बनाओगे और उस हिसाब से आप डेली बेसिस पे उसे कैसे यूटिलाइज कर पाओगे. हर्बल रेन्स वाटर्स,
देन सिंपल होममेड ऑयल्स जो मैंने आपको बताया DIY में, एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट विद द प्राणायाम, योगासनास एंड मेडिटेशन, एंड सिंपल लाइफस्टाइल टिप्स. So this all are we are covering in 3 days, and this 3 days is we are doing on the 15, 16 and 17 September next week, Monday, Tuesday and Wednesday, 8:30 to 10 ऑन लाइव जूम सेशन. रिकॉर्डिंग ऑल्सो मिलेगी, आपको डाउट क्लियरिंग रहेगा. आप जब भी आपको कोई भी डाउट रहेगा, यू हैव टू पिंग द पूजा एंड शी विल कनेक्ट टू मी. एंड सर्टिफिकेट रहेगा, एंड दिस अमाउंट इज अगेन 888. So you can connect with the Pooja, and I will handle this entire platform to Pooja to explain everything, whatever the next step for them. Pooja, are you there? Yes, very much. Yes. Thank you so much, Dr. Meghavi. So maybe I have many announcements to make, some gifts and things like that. But before that, maybe we'll just take a couple of questions if people have related to this. So you can have we can have a raise of hands. Uh, just 1 second. Just Yes. raise your hand, whatever the question So regarding just to that, one whatever we learned today. Huh? Yeah, just one brief announcement which I want to make is that although the focus is on hair, yes, but it is hair and beyond, okay? Because like she said, Dr. Mikaviji has been doing many courses with us, but personally, the most number of workshops which she's done, not just with me, but many on many other platforms, is the hair workshop. Am I right, Meghaviji? Yes, Yes, so yes, she yes, is yes, most experienced in this, and she's really, people have got very good results. So she spoke about the marma therapy, right? So she's going to yes. guide us in a easy to do ritual which we can do every day, which will activate the pineal glands, which is like the master gland. Okay, so it is not just related to hair. Of course, everything from A to Z related to hair we are definitely covering, but yes, beyond that also, like she said, there'll be some patch flower remedies, there will be some other marmic points which we can apply. And I've been personally practicing marma for a very long time, and it has given me phenomenal results. Yes, so I just wanted to clarify that. And yes, everything you will do all of this as per your unique hair quality, because many of us have been using many products, wasted a lot of money in that. कुछ घरेलू नुस्खे भी किए पर कुछ हुआ नहीं, बिकॉज हर चीज़ हर हर पर्सन के लिए नहीं होती है. हमारे हर के हेयर अलग है, और हमको जब वो जड़ से मैम समझाएंगी, तब हम समझेंगे, जब डॉक्टर मेघावी हमको समझाएंगे कि ओके हमको क्या, हमारे लिए कौन सा रिचुअल है जो वो इस कोर्स में बताएगी, हमको सिखाएगी कि हमको अपना पर्सनली ये रूटीन करना है. So this is very going to be a very insightful journey, and I once again welcome you all for this. एंड मैं डिटेल्स में तो अभी एक बार क्वेश्चन आंसर हो जाए उसके बाद बताऊंगी, पर हाँ इतना छोटा सा बता दे रही हूँ कि दोज ऑफ यू आर रजिस्टरिंग विद अस टुडे फॉर द हेयर केयर कोर्स, हम उसको उनको अपने पर्सनल हमारे तरफ से एक कोर्स गिफ्ट करना चाहते हैं, जो है एक्यूप्रेशर का कोर्स, जो TCM एक्यूप्रेशर है, मतलब एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ऑन एवरी मरीडियंस. हमारे बॉडी में 12 मरीडियन है, वो सब के, फॉर आर्थराइटिस कौन सा है, फॉर अल्जाइमर्स कौन सा है, फॉर ओबेसिटी कौन सा है, हर एक मरीडियन में हर एक पॉइंट डिजीज वाइज हम लेंगे. हमको पता है कि आपको बस ये जानना होता है कि हमको डायबिटीज है तो हमारे लिए कौन सा पॉइंट है. इस तरह से पूरा A to Z जो हमारा वर्कशॉप है, 18 डेज का कोर्स है, वो पूरा एज अ गिफ्ट कोर्स आपको दिया जाएगा. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू मोर अबाउट दैट कोर्स ऑल्सो. सो आपको ये दोनों कोर्सेज मिल रहे हैं फॉर 888. हमारी वेबसाइट में वो कोर्स भी 888 का है, यू कैन चेक. जो मैं भी दिखाऊंगी, एक बार क्वेश्चन आंसर हो जाए, और उसके बाद मुझे थोड़ा नवरात्रि के ऊपर भी आपसे एक अनाउंसमेंट करनी है. बट लेट अस फर्स्ट रिस्पेक्ट मेघावी जी टाइम, एंड जो भी आपको क्वेश्चंस है इस कोर्स से रिलेटेड, आप अभी पूछ सकते हैं. Yes, यस, Akshay ji. 1 सेकेंड. हाँ अक्षय जी, अक्षय जी हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं. हाँ अक्षय जी, प्लीज पूछिए. Hello, ma'am. Good evening. Thank you, Mega ma'am, Pooja ma'am, for such a lovely session. Thank you. Ma'am, my question is, graying of hair may be reversed. Suppose someone's hair is graying, just it has been beginning stage or at a moderate stage, then it may be reversed by some technique of Ayurvedic or some natural remedies Yes, or if some they home are into remedies. the very startup stage, na, then we can reverse it.
by the mental health and emotional health, stress management जो भी हम सीखेंगे क्लास में उससे, because it is all about because of that. अगेन इट इज बिकॉज ऑफ अवर पित्त इम्बैलेंस, पित्त प्रकृति, बट हमारी ज्यादातर इम्बैलेंस प्रकृति ये इसी इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ की वजह से ही ज्यादा इम्बैलेंस होती है। या तो उसके रिगार्डिंग हम काफी चीजें इस वर्कशॉप में सीखेंगे। तो ये जो एकदम शुरुआती कक्षा है उसमें हम कर सकते हैं, जिनका बहुत टाइम से हो रहा है उनके केस में मे बी और मे बी नॉट, वी कांट से इट इज लाइक 100%। या Yeah, I got it, ma'am. Second question is, ma'am, the pimple or acne or with the hair, it is having very intimate relation. Then by healing the hair therapy, by giving the therapy to the hair, suppose somebody is developing the symptom of acne or pimples, that may be helpful for the patient. Yes. So many times, if you have a dandruff, it's create a pimples on your face and mainly on your forehead. Okay, क्योंकि वो dandruff यहाँ पे आते हैं और वो infection करते हैं and it's create a acne. And you will get to know about the lifestyle, about your prakruti, how to balance your prakruti. So it will also help you, because so many times you have a acne because of hormonal imbalance, acne because of your imbalanced gut health, because of constipation, armor formation. तो ये सभी चीज हम जब वर्कशॉप में लाइफस्टाइल के बारे में सीखेंगे तो हम उसमें भी बहुत सारा बदलाव ला पाएंगे, एंड आफ्टर दैट चेंज यू विल गेट द रिजल्ट इन योर एक्ने आल्सो। Clear? Ma'am, one more question. In this workshop, are you going to cover any natural remedies, those what we can do for ourselves from the home remedies kind of things? Yes, we will provide all the home remedies as per your hair type. One is mask and one is oil. Okay, we will teach you how to make it and how at a home based also, and very low यानी cost भी आपकी एकदम पॉकेट फ्रेंडली रहेगी, उस हिसाब से वो रेमेडीज बनेगी। उसको फिर कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको सिखाया जाएगा, बट द मेन थिंग इट्स ऑल अबाउट योर टाइम एंड कमिटमेंट फॉर योर हेयर हेल्थ। Okay, Yes, okay. Ma'am, how much time does it take? How much time it's all about for 10 to healing one 15 minutes patient? daily. Sorry, No, of how patients, in the huh? for a visible result, ma'am, for a visible result, how much time does it take? So it's all about what kind of ritual you are ready to do daily basis. Okay, if you are ready to apply as per my guidance the oil and mask and the murmur massage and mudra therapy, it's all about to that space. Okay, but at least you have to give the 10 to 15 minutes morning and night to 10 to 15 minutes. At least that time you have to give for yourself, for your hair health. Yeah. Okay, thank you Thank you so much, so ma'am. much. Yeah. Okay, Thank you, yeah. Akshay ji. Yes. Yes, Vidula ji. Uh, thing is, age and genetics also matters in this, right? But मैटर तो करता है डेफिनेटली, बट इफ यू आर बैलेंसिंग योर दोषा एंड यू आर जस्ट एक्नॉलेजिंग योर एज एंड एज पर योर एज यू आर जस्ट क्रिएटिंग योर फूड प्लान एंड लाइफस्टाइल प्लान ना, तो इट विल हेल्प यू टू एटलीस्ट बैलेंस योर हेल्थ, हेयर हेल्थ वॉट एवर राइट नाउ, एंड मे बी इट्स इम्प्रूव योर हेयर हेल्थ। correct, and they curtail the this thing. So, okay. क्योंकि हमें पता है, देखो एज पर आयुर्वेदा वी नॉर्मली वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट इन द फर्स्ट स्टार्टअप एज, इन द किड एज वी हैव अ कफ age, kapha prakriti age. Okay, in our middle age we have a pitta prakriti age, and in our adult age we have a vata prakriti age. So that's why छोटो बच्चों को ज्यादातर कफ, सर्दी, खांसी के इश्यूज होते हैं। मिडिल एज में ज्यादातर हमें एसिडिटी के, गैस, इंडाइजेशन के इश्यूज होते हैं, और जब एडल्ट एज में हम जाते हैं तो हमें नी पेन, जॉइंट पेन, ड्राइनेस, उसके इश्यू होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अवर एज, एज के हिसाब से हमें बात पता है, आपकी प्रकृति आपको पता है, तो एज पर दैट यू हैव टू क्रिएट योर लाइफस्टाइल एंड इट विल हेल्प यू टू बैलेंस योर हेयर हेल्थ। क्लियर? Okay. Yeah. Yeah, thank you You. so much. Yeah, Yes, thank Geeta you. ji. Yeah. Yeah, thank you. Yes, Geeta ji. Hello, good evening. Good Uh, evening.
एक्चुअली मैं ये कोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ फॉर माय डॉटर। मेरी डॉटर एक्चुअली 14 इयर्स की है। उसको लास्ट ईयर टाइफाइड हो गया था, और उसके पहले बाल बहुत अच्छे थे, बट टाइफाइड के बाद उसका जो मेडिकेशन हुआ, जो भी ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद से ना उसके बाल बहुत ज्यादा, उसकी शेडिंग हुई, हेयर शेडिंग। उसके बाद उसके बाल तो वापस आए हैं, बट अभी है कि बिल्कुल ब्रिटल है, और बिल्कुल जैसे एक थिनिंग होती है ना, थिनिंग जैसे हो जाता है एक एज के बाद। बट उसका वो बाल रिकवरी में, क्योंकि स्कैल्प तो पूरा भर गया, बट अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो विल दिस कोर्स हेल्प मी Yes, टू टेक yes, केयर ऑफ हर definitely. हेयर? For her, only if you are utilizing the tea, which as per her Prakruti, and you just utilize the Marma massage daily, and whatever the routine of the oil and mask we are providing, na, if these four basic things also you just start for your daughter, na, you will get the result. बिकॉज उसका क्या है कि जो आपने जितने भी प्रकृति बताया ना, उसका हर किसी में से कुछ कुछ उसको अप्लाई होता है। हाँ, पूरा yes. बात नहीं है, But for पूरा पित्त नहीं है, पूरा but कफ नहीं है। mostly you have to take care of the पित्त प्रकृति because the medicines जब आपकी बॉडी में लॉन्ग टर्म जाती है और वो टाइफाइड की इम्पैक्ट, because we all are aware of the typhoid you have a constipation for a longer time, okay, Yeah. sometimes and mostly times. So in that, if we are balancing the vata and pitta prakriti, then it will help you to release that hair fall condition and everything. पर Yeah, जैसे dryness आपने and जो everything. दिखाया था ना, उसमें कफ प्रकृति में आपने दिखाया कि बहुत डैंड्रफ होता है, एंड बिल्कुल वो चिपचिपा सा होता है, एंड द हेयर्स आर वेरी ऑयली, लाइक वॉश हम्म. करने के बाद नेक्स्ट डे भी ऑयली So दिखते हैं। तो उसका that वो is the है हेयर reason, का। हाँ, that is the reason I told you ना, प्रकृति में भी different हो सकती है हाँ, and hair यस। type में भी. तो I am just telling for प्रकृति you have to create that kind of ahar vihar which we learn in the workshop, and as per the hair type you just follow the ritual of DIY and ओके। everything. ओके, Yeah. फाइन। Okay. थैंक Yeah. यू। Thank you so much, dear. Yeah. Thank you. Uh, yes, Jaurin ji and Akshay ji का आप हैंड लोअर कर दीजिएगा. हाँ, yes. Thank you. And उनको स्पॉटलाइट से भी आप निकाल दीजिए, ऐसा हो तो पूजा जी. या यस, जोरिन जी, हाय आपका मैं मेघावी नाम जी। प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं बराबर पता नहीं. नहीं नहीं, यस, आपने हाँ. परफेक्टली प्रोनाउंस किया है। और थैंक यू येट अगेन, वन मोर अमेजिंग कोर्स। थैंक यू. मेघावी जी, माय सन इज 23। अब उसने काफी हेयर लॉस हो गया है उसके ऊपर के सेक्शन में, क्राउन सेक्शन में। क्या ये बाल वापस आ सकता है? बिकॉज ऑल्सो इनका जो लाइक हेरिडिटरी वाइज मेरे हस्बैंड ने भी बाल बहुत जल्दी लॉस किया था। तो कोई कोई रे ऑफ होप है कि बाल वापस Yes, आएंगे? yes, because age is 23 na, so I can say yes. If you are followed by the regular mama massage and all the DIY and take care of her lifestyle and give the proper herbal tea and the nutrition, because at the age of 23, most of the time the reason is not the having a proper nutrition. ओके Okay, so if ओके। you are taking care, I'm just assuming everything, okay? And नहीं नहीं, वो after that, मेरे से हाँ, बहुत दूर रहता है, तो इसीलिए हाँ, शायद न्यूट्रिशन शायद उतनी अच्छी नहीं होगी। बट हाँ। हाँ. यस. सो देखो, एक चीज कॉमन है, जब मेल का होगा तो वो बीच से जाएगा एंड फीमेल का होगा तो वो यहाँ से बाल्डनेस क्रिएट होना स्टार्ट होता है, तो नेचुरल पार्ट्स है. तो उसमें देखो एज इतनी बड़ी नहीं है, तो आई कैन से यस, बट डेफिनेटली पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है एंड हाउ मच यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग इन दैट स्पेस. या थैंक यू सो मच, मैंने या पेमेंट थैंक ऑलरेडी यू कर डियर. दी है। थैंक यू सो मच। Great, thank you so much for that. थैंक यू। And I will like, जैसे हम सभी को पता ही है मेरे कोर्स में कि पूरा सा पूरा आपको डिटेल मिलेगा. मेन थिंग है उसको आपको फॉलो करना है. मैं तो आपको पूरी थाली दूंगी, गुजराती, मारवाड़ी, राजस्थानी, जो भी आपको चाहिए, बट उसके बाद परोसने के बाद खाना तो आपको ही है. सो हेयर हेल्थ में ये बहुत मैटर करता है कि मैं जब आपको सभी चीजें प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके बाद आप उसको कितना लॉन्ग टर्म तक प्रैक्टिस करते हो. एंड बिलीव मी, आई एम जस्ट टीचिंग दिस वर्कशॉप फ्रॉम लास्ट 2004, sorry, 2024, and whoever practicing at least murmur massage also daily na, as per my guidance and the daily guided meditation utilizing, they are also getting a very good results.
Okay, so it's not about I'm saying everything you have to utilize, but at least if I am sharing 100% from my side, तो you have to at least utilize 60 to 70% from your side. Okay, तो आपका पेट भर जाएगा normally. Yeah. Okay, so हम गुजराती खाने की ज्यादा बात करते हैं इसलिए. Okay, so thank you so much, Pooja ji, for creating this beautiful space and thank you so much everyone for being here and listening me and being that space for your healthy hair and not only for your healthy hair but you are here for your body, mind and emotional health as well as. So thank you so much. Yeah. Yes, thank you so much. So now I'll just make some announcements. And Mekhaviji, I think you have another hair care course only. So if you want to log out, you can. No problem. And if Okay. you're with Yes, us, yes, we are yeah. delighted. But I know you have a class at 7:30. So 8, no? Yes, 8 thank you o'clock. so much. 8:15. So yeah, thank you so much. Everyone keep smiling, keep creating magic in your life and everyone's life. Bye-bye, So everyone. much Thank for you. this lovely session. Thank you. Yeah, thank you. Yes. So now I'll just quickly update about the gift course. So I think Zoranji and couple of people have just now registered. I will request you to please post the screenshot in the group so my team can also give you the gift course. Okay. So I'll just share my screen and explain you what all we are going to cover in our gift course. Okay. So I trust you all can see my screen. Yes. Yeah. So, firstly, whoever is registering today for our hair course, of course, we're going to do many other Marma points related to our hair and other hormonal things also. But we want that if you're registering with us today, why not give you something, a tool to really cure yourselves of all the diseases, whatever you're having. So, acupressure is a very old, 2000 years old practice, which is also having very good results. Okay, and trust me, whoever is doing our courses can vouch for this also, that whatever we are teaching right from basic to advanced. We are never going to tell you that आप ये कोर्स ज्वाइन करिए, अब इसके बाद दूसरा लेवल कीजिए, तीसरा लेवल कीजिए, ऐसे नहीं. अगर हम एक्यूप्रेशर सिखा रहे हैं तो हम आपको उसका पूरा सिखा रहे हैं. इसमें हॉररी पॉइंट्स कवर्ड है. इसमें सारी पॉइंट्स आपको पता चल जाएंगे. अब इसके ऊपर आप पंक्चर करना चाहते हैं तो आप नीडल से कर सकते हैं, बट आप नॉर्मल स्टिम्युलेशन कर सकते हैं. सो ये एक्यूप्रेशर की कोर्स है जो पूरी बेसिक टू एडवांस है. ऑल द पॉइंट्स ऑफ ऑल द 12 मेरिडियंस वी आर गोइंग टू कवर डिजीज वाइज. ओके, so we will learn about the science and logic behind acupoints ki kyun why these points are effective, details of meridians which can be activated through these acupoints, रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी ऑर्गन क्लॉक. हम इसमें आपको बॉडी ऑर्गन क्लॉक भी समझाएंगे जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये आपको बहुत कम लोगों को पता होगा कि आपको अगर इंटरनेट से पता चल जाएगा कि अच्छा ये वाला पॉइंट हमारा लिवर का पॉइंट है, लेकिन किस टाइम पे इसको करना चाहिए स्टिम्युलेट, ये आपको नहीं पता चलेगा. तो आपको इसके लिए एक्यूप्रेशर समझना होगा. वंस यू अंडरस्टैंड कि इसको कौन से टाइम पे करना है तब वो ज़्यादा रिजल्ट देता है. वरना सम पीपल जस्ट प्रेस इट फ्रॉम गूगल, दे सी द पॉइंट एंड देन दे अप्लाई एंड दे फील दैट एक्यूप्रेशर इज नॉट वर्किंग. ओके, सो द बॉडी ऑर्गन क्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये हम आपको इसमें समझाएंगे, सिखाएंगे. सारे फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल डिजीजेस इसमें कवर्ड है. एज यू कैन सी द फी इज ₹888, बट फॉर ऑल ऑफ यू आर रजिस्टरिंग टुडे बिफोर मिडनाइट, दिस कोर्स इज अ गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड. ओके, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना. मतलब 888 में आपको हेयर केयर का पूरा कोर्स मिलेगा, आपको पूरा एक्यूप्रेशर का कोर्स भी मिलेगा. ठीक है. सो जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, मैं इसे डिटेल में नहीं जा रही हूँ, पर स्प्लीन मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन, किडनी मेरिडियन, इसमें सारे डिजीजेस हमने कवर किए हैं जितने भी पॉसिबल हैं. ठीक है, सारे मेरिडियंस है और उनके हॉररी पॉइंट्स है. फिर 2 हमारी वेसल्स होती है, गवर्निंग वेसल एंड कंसेप्शन वेसल, इसके ऊपर भी पूरा है. डूज एंड डोंट्स ऑफ एक्यूप्रेशर कि क्यों काम नहीं करता है, व्हाट यू हैव टू फॉलो. सो 18 डेज का जो, जैसे मैंने कहा, ये पूरा कोर्स है. ओके, नाउ आई बिलीव आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे नवरात्रि ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ. तो उसका मैं जस्ट टेक 5 मिनट्स टू एक्सप्लेन अबाउट दैट ऑल्सो. सो जब नवरात्रि हमारी शुरू हो रही है, ठीक है, 7 कब से शुरू हो रही है, जस्ट 1 सेकेंड, 22 सितंबर से शुरू हो रही है. ठीक है, तो वी हैव केप्ट अ कोर्स ऑन द नवरात्रि नव दुर्गा हीलिंग.
तो ये नवरात्रि जब चल रही है उन्हीं दिनों में हमने ये कोर्स रखा है। इट इज़ इन द आफ्टरनून टाइम फ्रॉम 2 to 3 PM, ताकि इस टाइम सब लोग फ्री रहेंगे। और इसका भी लाइव सेशन होगा। आप में से बहुत सारे लोग हमारे साथ एंसेस्ट्रल हीलिंग कर रहे हैं ऑलरेडी। सो उसी तरह का कुछ होगा, लेकिन और डिटेल्स में होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ना एक छोटा सा वीडियो आई वांट टू प्ले, जस्ट अ शॉर्ट वीडियो। लेट मी जस्ट टर्न ऑन द वॉल्यूम, शेयर कंप्यूटर साउंड। Why is it not happening? जस्ट 1 second, कोई मुझे प्लीज एक बार थंब रेज करके कंफर्म करना कि अगर साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। समझना और फील करना बहुत फर्क है। जब वो दुर्गा साउंड आ रहा है क्या? आई कांट सी एनीवन, समवन जस्ट गिव मी अ रिएक्शन। हैंड रेज आ रहा है, हाँ आ रहा है। थैंक यू स्मिता जी, थैंक यू सो मच। सो अरे 1 second। दुर्गा सप्तशती, मैं अपने इस पाठ को स्पिरिचुअली लेती हूँ। सिर्फ मंत्र पढ़ना, सिर्फ बोलना जरूरी नहीं है, पर उससे समझना और फील करना बहुत फर्क है। जब वो आप फील करते हैं तो उसका मतलब समझते हैं। उसमें हर एक बात का जवाब है, उसमें हर एक बात का मीनिंग है और एक साइंटिफिक मीनिंग है। उसमें ये भी है कि जो भी तो चले गए दुनिया से, पर कहीं ना कहीं वो तब भी है, उनका एक प्रभाव हमेशा एक रहेगा। और उसे प्रिजर्व करना, उससे समझना, उसे संभाल के रखना, वो मेरी जिम्मेदारी है और वो मैं रखूंगी। It's taken a lot of strength for you to say. यस, सो ये मुझे बताना था कि जो हमने बचपन से सुना होगा कि ये सप्तशती का पाठ होता है, लेकिन ये होता क्या है इसमें एक्चुअली? जैसे गीता में बोलते हैं ना, आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस, वैसे दुर्गा सप्तशती भी अगर कुछ लोगों ने पढ़ी हुई है तो उस पर स्टोरीज के माध्यम से बहुत गहरी बातें बताई गई है, फॉर आवर प्रोटेक्शन, फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर वेल्थ, फॉर आवर रिलेशनशिप्स, ठीक है। सो हम इस कोर्स में अगेन, ये भी डॉक्टर मेघावी जी कराने वाली है। सो इसमें हम सप्तशती का जो पार्ट है उसका एसेंस पूरा लेने वाले हैं। एवरी डे 9 days में हम ये इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जो कि शास्त्र में बताया गया है कि हमको ये करना चाहिए ड्यूरिंग द नवरात्रि, ओके। सो इसमें आपको ये समझ में आएगा। एंड यू ऑल नो दैट डॉक्टर मेघावी इज अ रेकी ग्रैंड मास्टर ऑल्सो। सो इसमें आपको एक एक जो नव दुर्गा की जो एक एक शक्ति है, एक एक पावर है, हर एक 9 गॉडेस के, वो सबकी आपको रेकी हीलिंग भी मिलेगी। आपको इस दिन कौन सा किस तरह से खाना खाना है ये दिया जाएगा। मतलब बेसिकली नवरात्रि से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब हम आपको देने वाले हैं। और ये सिर्फ 2 to 3 o'clock में हम ये करने वाले हैं। छोटा सा 1 hour होगा, कभी कभी जल्दी भी खत्म हो जाता है, सो ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। बट आई वुड रियली अर्ज दैट इफ़ यू ऑल वांट टू रीड द वैदिक स्क्रिप्चर, अंडरस्टैंड इट, देन दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ओके। सो हम ये 9 days में एसेंस ऑफ ईच नवदुर्गा करने वाले हैं, सप्तशती का पाठ का मीनिंग समझने वाले हैं और कैसे उसका प्रैक्टिकली अप्लाई करना है इन आवर लाइफ्स, ये हम समझने वाले हैं। ऑफकोर्स द बीज मंत्र एंड द वैदिक मंत्रास ऑफ एवरी गॉडेस देने वाले हैं। बहुत ही साइंटिफिक जो वैदिक रेमेडी होगी हर एक दिन की छोटी छोटी, वो हम आपको बताएंगे। एंड डोंट वरी, हम ये आपको बिफोर हैंड ही बता देंगे, ठीक है। क्योंकि अगेन फॉर दोज ऑफ यू ऑल हु आर रजिस्टरिंग टुडे फॉर द नवदुर्गा कोर्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 22 September to 1 October 2 to 3 PM, अगेन इसकी रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। तो अगर आप कोई दिन बिजी है, आप उसको रात में भी उसकी जस्ट हीलिंग ले सकते हैं। सो ये लाइफ टाइम का एक्सेस दिया जाएगा। और अगर आज आप इसके लिए रजिस्टर कर रहे हैं, देन वी आर गिविंग अनदर कोर्स विच इज़ द ऑरा हीलिंग थेरेपी, ठीक है। ये भी आपको एज अ गिफ्ट कोर्स मिलेगा, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू नवरात्रि। नवरात्रि अगेन ऐसे टाइम पीरियड है जब एस्ट्रोनॉमिकली थिंग्स आर वर्किंग फॉर अस। दिस इज द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली क्लेंस आवर ऑरा। तो इस टाइम पे आपको हम ये पूरा, अगेन द फी इज 888, बट अगेन इट इज एब्सोल्युटली फ्री जिसको भी। एंड इसके बाद हम पूरा बेसिक टू एडवांस करा रहे हैं कि यू कैन एक्चुअली बिकम एन ऑरा हीलर, ठीक है। तो ये कोर्स भी हम एज अ गिफ्ट कोर्स कर रहे हैं। बट प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, डोंट रिक्वेस्ट मी टू एक्सटेंड दिस गिफ्ट ऑफर टुमारो। ये हम नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा ये एक ओल्ड कोर्स जो था नवरात्रि वर्कशॉप, ठीक है, बहुत पहले, जिसमें हमने पूरी जिन लोगों को पूजा करनी होती है तो
कौन सी पूजा करनी है, क्या बोलना है, ये सब कुछ आपको डिटेल्स में पूरा 9 डेज का कौन सा पूजा क्या करना है वो सब आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको पहले ही दे दिया जाएगा ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें। इवन हमारा जो कोर्स है उसमें हम एक एक दिन पहले ही आपको बोल देंगे ये कल आपको ये थोड़ा सा रेडी करना, और बहुत सिंपल रेमेडीज है, कहीं आपको कुछ कष्ट आएगा वैसा नहीं हमने किया है, इसी तरह से पूरा प्लान किया है। सो दैट फिनिशेज माई थिंग। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यस। सो जस्ट टू ब्रीफ यू वन मोर टाइम समराइज, जो लोग आज रजिस्टर कर रहे हैं फॉर द हेयर केयर कोर्स, वी आर गिफ्टिंग देम द एक्यूप्रेशर कोर्स. Those who are registering for our Navratri course, we are gifting them the aura healing therapy course. Okay, so yes, and dates आपको सबको पता है. We are starting the hair care course from 15th, 16th and 17th. Yes, I'll just post the payment link in the group. Again, I'll request you कि प्लीज़ आप लोग मुझे पर्सनली मत करना, बिकॉज मेरी टीम जो जिसको भी ग्रुप में देखेगी स्क्रीनशॉट उनको ऐड कर देगी, तो आप पर्सनली मुझे मत भेजना स्क्रीनशॉट, जस्ट पोस्ट इट इन द ग्रुप. नवरात्रि कोर्स की फीस भी 888 है. हमारे यहाँ पे आप लोगों की कृपा से अभी क्योंकि पीपल आर रजिस्टरिंग, सो मेरा मोटो यही है कि मैं ये सब ऑथेंटिक प्रैक्टिसेस को कम फीस में रखूँ. सो एज मोर एंड मोर नंबर रजिस्टर हम इस फी को कायम रख पाएंगे. सो इट इज़ 888, ठीक है. नवरात्रि का भी 888 है और हमारी हेयर केयर कोर्स का भी 888 है. ग्रुप लिंक आई जस्ट शेयर. आव्या जी, इफ यू हैव माई नंबर जस्ट व्हाट्सएप मी. आई एम राइटिंग माई नंबर ओवर हियर इन द चैट बॉक्स. यस, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर और मैं आपको दोनों ग्रुप लिंक्स भेज दूंगी, नवरात्रि की भी और हेयर केयर कोर्स की भी, ठीक है. एंड हमारे कोर्स में हमेशा डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी अवेलेबल है. हमेशा आपको कभी भी कोई भी डाउट है इस कोर्स है, लाइफ लॉन्ग यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस. यस, सो अक्षय जी, आई थिंक आपका हैंड अभी भी रेज्ड है. यस, सो थैंक यू सो मच. आई विल जस्ट एंड दिस कॉल नाउ. या एंड आपको अभी भी कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हैं. थैंक यू वंस अगेन. आई ऑलवेज वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू. अभी कितने हैं, 47 ऑफ यू, कि आप जुड़े हैं. आप लोगों की वजह से ही हम ये कंटिन्यू कर पाते हैं, रोज़ रोज़ कुछ नया लेकर आ पाते हैं, ठीक है. एंड अभी रजिस्टर कर लीजिए अगर करना है तो, बिकॉज अभी अक्टूबर में काफ़ी ब्रेक होने वाला है. आई विल बी ट्रैवलिंग, आई वोंट बी हियर. सो तब अच्छा सा ब्रेक होगा. सो अभी हम थोड़े कोर्सेज कर रहे हैं बिकॉज ये टाइम है करने के लिए, बिकॉज नवरात्रि इज कमिंग. यस, थैंक यू सो मच एवरीवन. नमस्ते. अ वेरी गुड नाइट टू एवरीवन.